everyone, I welcome you all to my channel. This is going to be a review about the May ANI CET paper 2026 and मैं जानती हूँ कि तुम लोग इस वीडियो पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम ये सुनना चाहते हो कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, तुम्हारे 110 120 करेक्ट्स आ रहे हैं and you want to suffice yourself, you want to console yourself that the paper was really tough and I could get some seat at some aims. A sense of relief to yourself that it is not just me who has done wrong in the paper, जिसके easy questions भी silly mistakes की तरह गलत हो गए हैं. This is that vicious loop. I was there in the last May ANI set 2025. It felt so relatable जब मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे juniors जो यहाँ पे हैं, when they approached me, when I approached them and told them how was the paper, asked them about how was the difficulty, and as they started speaking all of these stuffs, I just felt a deja vu kind of thing ki I've been through this, and it gives me a deep sense of relief to be out of the competitive race, because competition is the most toughest thing in the life of an aspirant. ये वो रेस है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि एंड कहाँ होने वाला है, and you just have to juggle up every single day. You have to wake up and do everything that is possible to get into the race and win the race, and you don't know the end. Maybe you will win, you will lose the race. Before I just embark into how was the paper, I wanted to talk to you all definitely. मुझे पता है ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत ख़राब होता है. तुम्हें पता है जब मेरी में आनाई हुई थी एंड आई कुड नॉट परफॉर्म दैट रियली वेल व्हेन आई वाज आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, आई न्यू every single bit of thing that was wrong with me. I could not manage my time. I knew GTs were important. I eventually gave so much of GTs. I was confident enough, but gave up कि last एक डेढ़ महीने में GT देने का कोई फ़ायदा नहीं. I was not able to manage my time. I was not able to concentrate on the 9 subjects that were important in INI set. I was more focused on कि INI है, कुछ नया question आएगा, I should read about that. PYQs, PYTs ignore की थी. Like examination hall में भी जब मैं बैठी थी, I had that one thing in my mind going कि यार काश मैंने ये कर लिया होता. I would have been able to do it in this attempt only. I knew it in the examination hall कि इस बार मेरा selection नहीं हो रहा है. When I came out, like every single question was haunting that night, was haunting till the 7th day of the result. इवेंचुअली तुम रील्स, शॉर्ट्स, रेडिट, न जाने कहाँ कहाँ खुद को कंसोल करने जाओगे कि यार सबका पेपर ख़राब क्या है. यूट्यूब के कमेंट्स पे जाओगे, हंटिंग थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट वन वीडियो वे हंटिंग ऑफ कि शायद कोई ये कह दे कि यार द पेपर वाज टफ, या दिस वाज द काइंड ऑफ थिंग. आई थिंक ये सब सुनने के बाद आई वाज हैविंग जस्ट अ डीप sense of relief into myself that how hard it is to be going through that. And मैं हर बार पता है मैं एक चीज़ कहती थी कि hope is a very big thing that takes you from this to this, and I always try to give hope to people, because अगर मैं एक normal GMC से एम्स दिल्ली आ सकती हूँ तो तुम भी ये कर सकते हो. तुम भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, तुम अपनी सारी ड्रीम्स अचीव कर सकते हो. यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट इफ यू यूज इट वाइजली. बट समटाइम्स इट नीड्स अ रियलिस्टिक टच, एंड वी ऑल नो कि 1 से 2 लाख, आई रिमेंबर लास्ट ईयर 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर INI सेट. आई डोंट नो दिस टाइम इट माइट बी 2 to 3 lakhs, एंड आउट ऑफ दैट 400 से 500 बच्चे हैं जिनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिलने वाले हैं. सो ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ होगी जिन्हें नहीं मिलने वाला होगा, एंड उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे. सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है ना जब यू नो कि यू डिड एवरी पार्ट ऑफ थिंग दैट वॉज पॉसिबल फॉर यू, एवरी पार्ट ऑफ एफर्ट, waking up early, doing MCQs every day, giving GTs regularly, adhering to the instructions that is given by me or by any teacher or by the platform, it's still not ending up. You start questioning your abilities. भगवान के सामने खड़े होते हो, रो देते हो कि क्या कमी रख दी थी मैंने when I was preparing for it. मम्मी पापा के चेहरे, वो जो होप होते हैं उनके अंदर कि मेरा बेटा कर लेगा, मेरी बेटी कर लेगी, इतना मेहनत कर रहा है.
That endless loop. I still remember. The horror that was there for those 6 days was immense. Matlab, it was so bad. It was so bad. I remember I could not sleep for 6 days. I was not able to talk to my parents. I was continuously hunting every damn platform that is existent for NEET PG to ensure myself कि मैंने जो क्वेश्चन का आंसर किया है that has to be the answer. जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं. खुद को इतना ज़्यादा सफाइज करना चाहती थी कि नहीं, आई हैव डन बेस्ट, पीपल वुडंट हैव डन गुड, आई एम गोइंग टू बैंग ऑन, आई एम गोइंग टू गेट अ सीट XYZ. एंड आई डोंट वांट कि तुम इस लूप में फंसो, even if it has gone good or bad, either ways. मैं चाहती हूँ कि 5-6 दिन, आई नो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, एंड मे बी इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस लूप से बाहर आओ, क्योंकि एग्जामिनेशन सबसे टफ पार्ट है जो कोई नहीं समझना चाहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एवरी वन वुड बी ब्लेमिंग यू, यू डिड नॉट स्टडी, यू डिड नॉट डू दिस, यू डिड नॉट डू दैट, even if you put your 100% efforts into it. आई डोंट वॉन्ट यू कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म के 7-8 घंटे के उनके जो आंसर्स होते हैं वो बैठ के देखो. इट वॉज सो टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी, लाइक एवरी डे जो रील शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे, वीडियोस यूट्यूब पे जो वीडियोस आएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स के, या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड every question you see and you feel like यार ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है. It is so disheartening at a point कि you stop looking at it and the next day again you are at the same place looking for things कि शायद मैं सही हूँ, शायद ये गलत है, शायद what I have written is the best, शायद there would be something magical that comes up. But I want you कि ये 6 दिन तुम आराम करो. Seriously, I want you all to take rest out of this stuff. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तुम्हें अगर वापस से बैठना होगा तो तुम्हें उतना करेज इकट्ठा करना है, तुम्हें अपने डिफीट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. एंड आई थिंक जब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे तब भी मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि अगर तुम्हारा आना टारगेट है भी या नहीं भी है, बट इस एग्ज़ाम को देख के जो तुम्हें एग्जामिनेशन के लिए प्रेशर, जो तुमने गलती करी थी प्रेशर में, या फिर तुम्हें जो कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए वो ये एग्जामिनेशन तुम्हें देगा, तुम्हें प्रिपेयर करेगा फॉर नीट PG या फिर द अपकमिंग INI नवंबर. If you are looking for it, please ये 6 दिन अपने आप को काम करो, बाहर घूमो, do not sit idle. This is the time when you need to talk to people. You can talk to me, you can talk to any other person that you wish to. जो तुम्हारे अगल बगल के लोग हैं, मम्मी पापा है, कोई अच्छा दोस्त है, जो भी है उससे बात करो. You need to reach out. This is the worst phase. People don't understand until they themselves have gone through that competitive examination. Because ये life deciding चीज़, it's not a normal school test का examination which is just आया गया, doesn't matter, तुम पास हो गए, that's it. बाहर घूमो, movies देखो. I know this is the toughest task, but this is something that you need right now. Maybe I would feel like कि कुछ भी बोल रही है, इसका selection हो गया इसलिए बकवास किए जा रही है, but दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी. एंड रिगार्डिंग तुम्हें अगर देखने भी है तो तुम आज से 3-4 दिन बाद जब सेरेबेलम का ज़ैनब मैम प्रॉपर रिकॉल निकालती है, एक साथ उसी में देख लेना जो उन्होंने निकाला होगा उसका 10+10+-10 करके समथिंग अराउंड द रेंज तुम्हारे मार्क्स होंगे. बट प्लीज़ गिव योर सेल्फ रेस्ट राइट नाउ. यू नीड दिस टाइम. योर एफर्ट्स ऑफ 2 to 3 years, 4 years was tested yesterday in just 3 hours का time. It's so walking kind of thing कि यार 2-3 साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटे का पेपर डिसाइड करेगा, और 3 घंटे का पेपर तुम्हारे अकॉर्डिंग गया है या नहीं गया, यू डोंट नो. सो इट्स सो अनरियलिस्टिक टू थिंक अबाउट, बट येस दैट्स द ट्रूथ. एक 3 घंटे के एग्जाम ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है. there's nothing other than that. Now coming to the main part, how was the paper? मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ कि जब मेरा लास्ट ईयर नीट PG था और INI CT था तो लोगों ने सेम चीज़ कहा था कि बहुत आसान था पेपर, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा. एंड इट वॉज द अदर वे राउंड. कट ऑफ नीचे गया. हमारे नीट के वक्त हाईएस्ट मार्क्स वॉज 707, INI में 162-163 हाईएस्ट कट ऑफ गया था, which was never, I think, in the last 10 years के ट्रेंड्स में. It was always 174-178 questions bang on.
for INICT top, and NEET maybe it was always more than 725, 730 ऐसे जाता था, and this was something different. Although हमारा paper might have been easy, I don't question that thing, but yeah, cut-offs नीचे गई थी. And this is what I wanted to reiterate even कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकली थी, सभी लोग यही बोले थे पेपर इतना आसान है, कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा. प्लीज बंद कर दो ये सब सुनना, पेपर वॉज ईजी. ओ जो लोग बेसिकली पता है, जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, अगर उनको दिखता है कि अरे ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स तो हमने देखी है हमारे में, दिस वाज तो सो इजी, बट दे डोंट नो द ट्रिक बिहाइंड द क्वेश्चन. यू नो द ट्रिक बिहाइंड द क्वेश्चन कि भाई ये तो पता है मुझे, ये टॉपिक हमें पढ़ाया है, बट ये चीज़ हमें नहीं पढ़ाई है, ये चीज़ मुझे क्वेश्चंस के थ्रू जानना है. तो ये चीज़ उनको नहीं समझ आता है. एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो INI अटेम्प्ट करती हैं वो ऐसी ही पॉपुलेशन से बिलोंग करती है जो INI को डज नॉट गिव दैट इंपॉर्टेंस. दे नॉट गोइंग टू give the examination for the sake of getting the seat. They come to just see the paper. They just see the paper. They don't even analyze the paper. उनके पास वो टॉपिक्स पढ़े होते हैं. They feel कि हाँ यार ये टॉपिक्स तो पढ़ाया गया था मैरो में, and this was so easy paper. जिसने and the statement that they quote, and this was very fiercing and angering to me at that time as well. जब मेरा एग्जामिनेशन था, जब वो ऐसे बोलते थे कि जिसने पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान होगा. भाई हमने भी पढ़ा है, हमें पेपर आसान नहीं लगा. Eventually the simplest of the questions can look tough to you if you know the amount of content more than that required. अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पता होता है तब confusion शुरू होती है. अगर तुम्हें एक चीज़ पता है तो confusion नहीं शुरू होगी. अगर तुम्हें सिर्फ congenital diaphragmatic hernia के बारे में ही पता है, air spaces in the lungs, तो तुम CPAM के साथ उसे कभी confuse नहीं करोगे. This is the basic difference. एंड जितने भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, द पेपर वॉज ईजी, अरे ऐसा गया था वैसा गया था, उसके तो इतने आ रहे हैं, उसके 170, उसके 180, समवन इज गेटिंग 190 प्लस, ओ माई गॉड, यू हैव नो चांस, वी हैव नो चांस, XYZ. जस्ट ब्लॉक दोज पीपल, जस्ट शट इट अप. इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब हटा दो, हमें फालतू की चीज़ें चाहिए ही नहीं. जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, वो 3 घंटे मैटर करते हैं. इवन इफ पेपर ईजी बना होगा, अगर बच्चों का परफॉर्मेंस बेकार है तो नहीं जाएगा कट ऑफ उतना ऊपर. स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मैटर्स. You get that? It is the students' performance that matters. पेपर अगर इजी आया, ऑब्वियसली बात है, अगर इजी आया तो फिर कट ऑफ ऊपर जाते हैं, बट स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी मैटर करता है भाई. अगर पेपर इजी आया बट बहुत ज़्यादा ट्रिकी आया तो स्टिल कट ऑफ नीचे चला जाएगा. हमारे नीट पीजे का पेपर वाज टोल्ड टू बी वेरी इजी, स्टिल कट ऑफ नीचे गया. आई हैड जस्ट 175 करेक्ट्स एंड आई वाज 25 रैंक. दिस इज नॉट द ट्रेंड दैट INI फॉलोज. 175 में रैंक बहुत पीछे होती है. नीट फॉलोज बहुत पीछे होती है, तो भी मेरे उतने आए थे. तो जस्ट स्टॉप looking into that, right? The paper was easy, the paper was tough, the paper was moderate. Don't hear other people. What my opinion was when I went through the paper, मुझे भी ये जो डैम्स एंड सेरेबेलम एंड जो भी लोग, सेरेबेलम का तो नहीं, मुझे जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से मुझे क्वेश्चन जितने देखने को मिले, आई फेल्ट दैट पेपर वॉज लिटरली टुवर्ड्स द टफर साइड. ऑल्दो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही थी, आई वॉज जस्ट लुकिंग थ्रू द पेपर, आई वॉज जस्ट लुकिंग थ्रू कि PYQs एंड PYTs जितने मुझे याद है वॉज where they present or not, and I felt कि PYQs PYTs were there, but वही है ना कि PYQs PYTs तो वो पूछते ही है, there is no doubt into that, but जो आगे का स्टेटमेंट उन्होंने टिक किया होता है, that is the point that makes it a new question. अरे हर बार अगर हाइड्रोसिलिया हर्निया पूछ रहे हैं तो एक चीज थोड़ा ना पूछते हैं, हर्निया के बारे में कुछ XYZ चीज पूछ लिया, कभी इन्फेंटाइल्स के बीज पूछ लिया. ऑफ्थेल तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे सो क्रेजी अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कि ऑफ्थेल में तो उनको दंगे करने ही होते हैं, समथिंग और द अदर न्यू थिंग दैट kills up your mind. And this is the usual trend. तो ऑफ्था को तो, अगर तुमने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी, मैंने हमेशा से बोला होगा ऑफ्था ENT इन सबको तो भाव ही नहीं देने का, बिकॉज हमें पता है कि अगर इन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा बना हमको नहीं आने वाला. हमको इतना पता ही नहीं है ऑफ्थैल्मोलॉजी के बारे में. यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी RPC सेंटर खोल रखी है, न जाने इनको क्या क्या पूछना होगा उसमें से. वी डोंट केयर, हमें 150 160 क्वेश्चन करेक्ट करना है, दैट इज द ट्रेंड INI goes on, right? So I think the paper was tougher side. I think the questions were really tricky because PYQs, PYTs होने के बावजूद I felt that they were more along the trickier side. It wasn't easy. As usual, pharmacology questions were very twisty. I don't know why they're crazy about drugs and stuff. And eventually I heard about assertion and reasoning bhi aayi thi. I'm not sure. I haven't looked into any of the assertion reasoning. And assertion reasoning is that one part which is very tough to determine because वहाँ पे दोनों करेक्ट है, बट इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट इज ऑल्सो इवन अ ट्रिकियर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज समटाइम्स इवन स्ट्रेट आंसर्स आर टू गुड, बट अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ऐसे इफ एंड बट एंड और में, तो ये बहुत टफ पार्ट होता है टू सॉल्व. एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके मार्क्स ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर देते हैं.
सिमिलरली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं जिसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है, ऑप्शंस भी ऐसे है कि एक हटा देते हैं, दो हटा देते हैं, they turn out to be really difficult for the students at the same time. And comparing it with the previous papers, I felt कि ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर बिट टफर मैं कहूँगी. एंड आई थिंक कि जो मार्क्स का रेंज है, आई फील कि वो भी अलॉन्ग द सिमिलर लाइन्स ही जाएगा, लाइक 160 प्लस या बैंग ऑन अंडर 10 एंड 140 to 150 तुम्हारी 100 to 500 की रैंक होगी, विच इज़ द यूजुअल ट्रेंड. क्योंकि अगर खराब से खराब पेपर में भी ऐसा ही रहा है एंड बेटर से बेटर पेपर में यू कैन हैव एनीथिंग अराउंड 170 प्लस विच द टॉपर्स यूजुअली गेट. तो जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, जस्ट लीव इट. जो होगा सो 7 दिन बाद रिजल्ट्स आने ही वाले हैं. तुम्हें खुद को एनर्जाइज करना है, तुम्हें खुद को बैलेंस करना है, तुम्हें खुद को री एनफोर्स करवाना है एक नेक्स्ट एग्जाम के लिए, एक नेक्स्ट पड़ाव के लिए. एंड टू मी द पेपर वॉज टफ. टू मी द पर्सन सिटिंग इन द एग्जामिनेशन लुकिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड डूइंग इट अंडर द टाइम कंस्ट्रेंट वॉज टफ. एंड मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आई फील मैरो से questions करना is comparatively easy because Marrow is touching on all the aspects that I was going through the questions. I felt कि हाँ ये चीज़ें मैंने Marrow में पढ़ी है, because Marrow already vast भी है but it has the intricacies की it is touching upon those facts जो ANI में या फिर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. एंड स्पेसिफिकली मैं ANI की बात करूँ तो ANI में ही मैंने देखा है कि Marrow के ट्रेंड्स आर टू pretty good as compared to other platforms. Which I usually say कि मैंने Marrow use किया है तो I'm pretty confident कि Marrow is a very good source for your preparation, although it's very vast and it would consume a lot of time for making the Marrow का RR form out of the main source and then revising it, because it is very vast. You need to consolidate and then you need to procure out what is important, what is not important at the very last 10 days of your preparation, right? So all the very best. I just hope कि मैंने तुम्हारे अंदर के वो एक पार्ट ऑफ कन्फ्यूजन को, वो एक पार्ट ऑफ जो कॉन्फिडेंस है जो हिल चुका होगा, उसको मैंने एड्रेस किया होगा. बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, आई नो हाउ डज इट फील. एंड उससे बाहर निकल के मैंने अपने अगले दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. एंड आई वॉन्ट यू कि तुम मुझे एज एन इंस्पिरेशन लो और अपने अगले 2 एग्जाम में फोड़ के आओ अगर एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है. So all the very best, take care and I really hope तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और इसी साल तुम अपने ड्रीम कॉलेजेस में the best place, the best feelings के साथ एंटर करो. So take care, goodbye.